morning to all students. Now your subject is biology. Now part 14, class 10, chapter life processes, learning topic, learning topic, आपका ट्रांसपोर्ट हुआ लर्निंग का ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स होगा। लर्निंग टॉपिक ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स खत्म हो गया यार। लर्निंग टॉपिक है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मीन्स परिवहन। Transport, the movement of one substance from one place to another place is called transport or transportation. The movement of one substance from one place to other place is known as transport or transportation. एक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और ले आने की क्रिया को ही कहते हैं परिवहन। ठीक। In the case of animals or plants, the method of transport is different. In the case of animals, the medium of transport, method of transportation is different with the respect of plants. In the case of animals, the medium of transport is blood. Blood is responsible for transportation of all nutrients in the human body. But in the case of plants, the method of transportation takes place by different ways, and different type of organs related with transportation of water, minerals, and prepared food. In the case of plants, xylem and phloem are responsible for transportation of any type of material. ठीक। तो कहता है कि in biology, transport is a life process in which a substance absorbed in one part of the body of an organism is carried to other part of its body. तो बोले कि the movement of substances material from one part of the body to other part is known as transportation. बतलाएं तो पहले बतलाते फर्स्ट लाइन में। ठीक। अब बतलाना है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनिमल्स और प्लांट्स। तो किसमें पहले बताते हैं, एनिमल्स में कि प्लांट्स में। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स बताते हैं पहले। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, पौधे में परिवहन। ठीक। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। Transport in plants. In the case of plant, the method of transportation takes place by two types of cells. The first cell is known as xylem, 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 and other is phloem, PHLOEM, phloem. ठीक। ये दो ही प्रकार के कोशिकाएं हैं जो पौधों में ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया को पूरा करता है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, इन द प्लांट। Water and minerals. It transports water and minerals in the plants. और phloem में चलिए, it translocates या transports भी कहते हैं, it translocates prepared food
प्रिपेयर्ड फूड, प्रिपेयर्ड फूड। देखिए ठीक कि फ्लोएम जो है प्रिपेयर्ड फूड को ट्रांसलोकेशन करता है वन प्लेस से अदर प्लेस तक, और जाइलम प्रिपेयर्ड ना जाइलम जो है वाटर और मिनरल का जो है ना क्या करता है ना ट्रांसपोर्टेशन करता है वन प्लेस से अदर प्लेस तक। ठीक सुनिए इसमें और आगे बतलाते हैं। ठीक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज लेस इलेबोरेट देन इन एनिमल्स। Plants are less active, so their cells do not need to be supplied with material so quickly. And due to the branching shapes of a plant, all the cells of a plant can get oxygen for respiration and carbon dioxide for photosynthesis directly from the air by diffusion. Diffusion फिर आ गया, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। डिफ्यूजन प्रोसेस आपको बतलाया है पहले क्लास में, डिफ्यूजन प्रोसेस बतलाया है। द मूवमेंट ऑफ डिफ्यूजन के लिए द मूवमेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंस विदिन द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, the movement of substance solid liquid or gaseous substance according to concentration gradient is called diffusion, called diffusion। चलिए डिफ्यूजन बतलाया, डिफ्यूजन की चर्चा तो डिफ्यूजन बतलाए। ठीक इसके बाद क्या था, the plants have two transport system, two transport system तो बतलाएंगे। टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। उसके लिए लिखे भी जाइलम के लिए सुनिए, जाइलम which carries water and minerals, बतलाया मिल गया आपको। सेकेंड फ्लोएम which carries the food materials which the plants makes, और किसका कैरी करता है जी, कहता है कि फिर चलिए सुनिए, the transport of materials in a plant can be divided into two parts, first transport of water and minerals in the plants और transport of food and other substances in the plants। तो बताएं भी बोला जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट किया, और फ्लोएम जो है पौधे की पत्ती में बना हुआ भोज्य पदार्थ है उसको ट्रांसपोर्ट किया। ठीक और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के बारे में सुनिए, ये वाला फर्स्ट वाला ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के बारे में सुनिए। कहता कि प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। कहता कि प्लांट्स आल्सो नीड मिनरल सॉल्ट्स फॉर वेरियस पर्पसेस। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल by the roots of the plants and transported to the various parts of the plant like stem, leaves and flowers. In the leaves, water is used in making food by photosynthesis. The water and minerals dissolved in it and move from the root of the plant to its leaves through the two kinds of elements of the xylem tissues and are called xylem vessels and tracheids। चलिए अब इस जो है वाटर और मिनरल्स को प्लांट के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने के लिए जो काम आता है सेल्स, एक का नाम है क्या, एक का नाम है उसको जो कहते हैं वेसल्स। वेसल्स का एलिमेंट को VEECLS वेसल्स, और दूसरा का नाम है ट्रैकिड्स TRACHEIDS ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स वेसल्स और ट्रैकिड्स सेल्स हैं। वेसल्स और ट्रैकिड्स तो सेल हैं जो किसी प्लांट्स में वाटर और मिनरल का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो वेसल्स के बारे में सुनिए विशेष। वेसल्स इट इज ए लॉन्ग ट्यूब, इट इज ए लॉन्ग ड्रेन लाइक ट्यूब्स, लॉन्ग ट्यूब ओपन बोथ द एंड्स, ओपन बोथ द एंड्स। ऐसा होता है इस तरह का, एक इस तरह का जो होता है ट्यूब, देख लें इसको। ट्रैकिड्स का वेसल्स का बना रहा है डायग्राम, वेसल्स का इस तरह का होता है वेसल्स।
long tube, this long tube is called vessels. long tube is called vessels हो गया, ठीक। और इसको कहेंगे पीठ, इसको कहेंगे पीठ, सिंपल पीठ और पीठ, सिंपल पीठ और पीठ। कहीं कहीं बॉर्डर पीठ होता है, बॉर्डर पीठ की चलते हैं सिंपल पीठ, ठीक। और ये हो गया ये, दिस इज थिक सेल वॉल, थिक सेल वॉल, थिक सेल वॉल, ठीक। इसके बाद है स्पेस कंटेनिंग नो साइटोप्लाज्म, स्पेस containing no cytoplasm, space containing no cytoplasm, ठीक। इसके बाद है remains of end wall, यहाँ ये वाला remains माने अवशेष, remains of no wall, remains of end wall, end wall का remains, end wall, this is the structure of tracheids, tracheids है, tracheids, sorry sir, no vessels, structure of vessels, VESSELS, structure of vessels, vessels का structure है, इसको नोट करें। vessels के structure को बनाएं तो फिर आगे हम आपको बतलाएंगे। दोनों एंड जो है ना खुला है, नीचे भी खुला है एंड, और ऊपर भी खुला है ये एंड, देख लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे आप, नोट कर लिए होंगे। अब इसको इरेज करते हैं, और इरेज अभी नहीं, इसके बगल में एक और बना देते हैं ट्रैकिड्स का, इसका ट्रैकिड्स का बना देते हैं, ठीक। ट्रैकिड्स हो गया, ट्रैकिड्स, और ये सब जो है पिट्स हैं, जिससे वाटर इन करता है इसमें, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिड्स, TRACHED, ट्रैकिड, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिड हो गया, ठीक। चलिए इस स्ट्रक्चर को बना लें, स्ट्रक्चर वेसल्स, दिस स्ट्रक्चर ट्रैकिड्स, दोनों को बना लें। दोनों जो है ना वाटर अपटेक में प्लांट्स को मदद करता है, सबसे ज्यादा मदद करता है कौन, या वेसल्स, और या फीड्स भी मदद करता है, लेकिन उसकी तुलना में कम। ये पानी को ऑब्जर्व करता है कम, ये ओपन, दोनों तरफ से ओपन होने के कारण पानी को ऑब्जर्व करता है ज्यादा। वेसल्स देखिए दोनों तरफ से क्लोज्ड है, इसलिए पीठ के माध्यम से ये ऑब्जर्व करता है वाटर, इसलिए कम ऑब्जर्व करता है वाटर को, ठीक। आगे बतलाते हैं, सुनिएगा, आगे इसमें कुछ बतलाते हैं वेसल्स के बारे में, डिजाइलम वेसल्स, डिजाइलम वेसल्स और वेसल्स के बारे में सुनिए। डिजाइलम वेसल्स इज ए नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब, यह होता है जाइलम वेसल्स, यह होता है नॉन लिविंग होता है जी, नॉन लिविंग होता है,
याद करिएगा कि नॉन लिविंग होता है कौन, वेसल्स, लॉन्ग ट्यूब, एक रन्स लाइक ए ड्रेन पाइप थ्रू द प्लांट, पौधे के शरीर में इस तरह से नाला में जिस तरह से पाइप दिया हुआ रहता है उसे नाले में पाइप की भांति रहता है। ठीक, जाइलम वेसल्स डू नॉट कंटेन द साइटोप्लाज्म न्यूक्लियाई, जाइलम वेसल्स में देख रहा है साइटोप्लाज्म कहीं दिखाया हुआ है, न्यूक्लियाई कहीं दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस नहीं दिखा रहा, इसमें दिखाई दे रहा है। नॉन लिविंग है तो फर्स्ट में तो लिख दिया पॉइंट कि नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग है तो इसमें साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस की जरूरत क्या है, जब नॉन लिविंग है ही तो इस कंपैरिजन कंपैरेटिव स्टडी कीजिएगा, जब वेसल्स हो जाएगा लिविंग हो जाएगा, वेसल्स क्या होगा, लिविंग होगा, वेसल्स ट्रैकिड्स, वेसल्स तो बताया नॉन लिविंग की नॉन लिविंग है तो इसमें साइटोप्लाज्म भी नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है। और ट्रैकिड्स की, ट्रैकिड्स आर लॉन्ग थिन स्पिंडल शेप्ड सेल्स विद पीड्स इन देयर थिक सेल वॉल, थिक सेल वॉल, ये लिविंग स्ट्रक्चर है जाकर के, ए डोमिनो ए है, बोथ आर नॉन लिविंग, बोथ आर नॉन लिविंग है। कहता है कि ए जाइलम वेसल्स इज मेड ऑफ मेनी हॉलो डेड सेल्स कॉल्ड वेसल्स एलिमेंट joined end to end. End walls of the cells have broken down, so a long open tube is formed. Xylem vessels run from the end of the plant right up through the stem and reach the leaves. The xylem vessels branch into every leaf of the plant. Xylem vessels do not contain the cytoplasm or nuclei. बताए थे आगे, कहता है walls of xylem vessels are made of cellulose and lignin. बना होता है किस चीज का है, यहाँ बना होता है कौन चीज का, वेसल्स, वेसल्स, वेसल्स बना होता है ये सेलुलोज और लिग्निन का, सेलुलोज, सेलुलोज एंड लिग्निन, लिग्निन का बना होता है, लिग्निन का बना होता है, याद रखना होगा ये बना होता है वेसल्स सेलुलोज का और लिग्निन का, ट्रैकिड की चर्चा नहीं हो रहा है, वेसल्स बना होता है सेलुलोज का और लिग्निन का, बहुत इंपॉर्टेंट था इसके नोट कर दिए हैं। लिग्निन का लिग्निन इज ए वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस, सो जाइलम वेसल्स आल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द स्टेम्स एंड हेल्प टू कीप द प्लांट अपराइट। कहता है कि वुड इज मेड ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ लिग्निफाइड जाइलम वेसल्स। वुड, वुड कहते हैं किसको, वुड बराबर, वुड, वुड बराबर लिग्निफाइड, लिग्निफाइड जाइलम वेसल्स, लिग्निफाइड जाइलम वेसल्स, VESSELS, वुड, वुड, वुड है क्या, ये लिग्निफाइड जाइलम वेसल्स इज कॉल्ड वुड, ये लिग्निफाइड जाइलम वेसल्स इज कॉल्ड वुड, याद रखना होगा, ये लिग्निफाइड जाइलम वेसल्स इज कॉल्ड वुड। ठीक, आगे इसके बाद जाइलम वेसल्स have pits in their thick cell walls, pits की चर्चा दिखाए हैं, pits are not open pores, इसमें open pores नहीं होता है, but कहता pits are the thin area of the cell wall, whereas lignin has been deposited, कहता pits have unthickened cellulose cell wall. In flowering plants, either only xylem vessels transport water or both xylem vessels and tracheids transport water. Flowering plants में point important है, flowering plants में, in the case of flowering plant, flowering plant means क्या, cryptogams या phanerogams, phanerogams, flowering plants PLANTS, plants contain either tracheids or vessels, tracheids or vessels. In flowering plants, either only xylem vessels transport water or both xylem vessels and tracheids transport water, दोनों। कहता है कि either transport water, tracheids or vessels, tracheids or vessels, tracheids oblique vessels. That's all. I end my speech. Thank you very